Good morning, students. How are you all? Great, no? Students, today I'm going to begin new chapter number 11, reproduction in plants. In this lesson, we are going to study about what is meant by reproduction, two modes of reproduction, that is sexual reproduction, asexual reproduction. Again, that asexual reproductions are divided into two parts, that is natural, artificial. Natural divided into four, artificials are divided into four in this way. So one by one, let us start. और हम क्या सीखने वाले हैं इसमें? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑल्सो, दैट वन मोर पॉइंट. नाउ रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. यू विल हैव द क्वेश्चन, मैडम क्यों ये इसेंशियल है? बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. हमें हमारा एग्जिस्टेंस रखना है, सर्वाइवल रखना है, रहना है हमें ऑन दिस प्लैनेट. सो रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. देन एंड देन इट इज़ पॉसिबल. जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके बाद मेरे पेरेंट्स आ गए. मेरे पेरेंट्स वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ देम. मैं मेरे पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग हूँ. मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे ऑफस्प्रिंग है. सो दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. The process of production new individual from the parents से new individual आ रहे हैं, उससे simply हम reproduction बोलते हैं. So in this chapter we will discuss about the reproduction in plants. हम reproduction in plants की बात कर रहे हैं. So that is asexual, sexual. Asexual is divided into again two types. That is asexual is divided into four types. That is budding, fragmentation, then है sportation, then है vegetative propagation. This vegetative propagation is divided into two types, that is natural, artificial, and in this way. So first of all we will discuss about the budding के बारे में हम बात करेंगे. उसके पहले थोड़ा सा briefly we will discuss about the asexual and sexual reproduction. Almost every living organisms reproduce. Survival of life is possible with this reproduction only. So almost every living organism is reproduced. If organisms do not reproduce, their species will become extinct. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली दैट स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद वो रहेंगे ही नहीं. बिकॉज उनका नेक्स्ट जनरेशन अगर आ ही नहीं रहा है तो एवरी सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन लाइफ. उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनका एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. फिर वो चले जाएंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगा वो स्पीशीज़ का. सो इन दिस वे modes of reproduction. Generally this reproduction in plants takes place by various methods which can be categorized mainly into asexual reproduction and sexual reproduction. So simply asexual reproduction and sexual reproduction. Actually what is meant by asexual reproduction? This mode of reproduction involves the production of a new individual by a single parent. एक ही parent जिसमें involve है वो asexual reproduction है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट इज बाई पेरेंटल, उसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू सेक्सेस आर नेसेसरी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस asexual reproduction does not involve the union of sex cells. जिससे हम सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स बोलते हैं, उसमें उसका यूनियन नहीं होता है asexual reproduction में. And sexual reproduction is the mode of reproduction in which sex cells means gametes, two sexes are necessary. They are involved to produce a new individual which is identical to either of the parent. So sexual reproduction में क्या है? एक तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ इनहेरिटेंस लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं, कुछ मदर से, कुछ फादर से, कुछ दूसरा भी उनमें आ जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस वे. बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर ऑफस्प्रिंग्स, देयर यंग वंस आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स. क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स मीन्स आइडेंटिकल ऑफ देयर पेरेंट्स. मीन्स क्या? बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे. Now we will discuss about in detail asexual reproduction. हम asexual reproduction की बात करेंगे in detail. There are different methods of asexual reproduction in plants. Let us study them in detail. So first of all budding. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? बडिंग की बात करेंगे.
So it involves the formation of a small bulb-like projection. Bulb-like projection है, मीन्स कैसे होगा, राउंड गोल ऐसा होगा, कॉल्ड बर्ड, जिससे हम बर्ड बोलते हैं ऑन द बॉडी. तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पे बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आ जाएंगे जिससे हम बर्ड बोलेंगे. ये बर्ड में से ही दूसरा उनका न्यू वन, यंग वन, ऑफस्प्रिंग, जिसका इट विल प्रोड्यूस, उसका जन्म हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे. द बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली एंड गेट्स डिटैच. वो बर्ड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उनकी बॉडी पे ही बर्ड फॉर्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और अपने आप निकल जाएगा. फिर उसकी बॉडी पे दूसरा बर्ड आएगा, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वो निकल जाएगा. सो इन दिस वे दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड उनका ग्रोथ होगा, उनकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे. The bird grows gradually and gets detached from the parent's body and grows into a new plant. New plant में grow हो जाएंगे, फिर उस पे bird आके उनका हो जाएगा. Budding is seen in organisms like yeast. So yeast का example है जो form होता है budding से, with the help of budding. Budding क्या है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, वो बॉडी पे बन जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद ग्रो होने के बाद वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उनके भी बॉडी पे बर्ड आ जाता है. इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, आपको ईस्ट पाउडर लाना है. एक्चुअली इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक ग्लास ऑफ वाटर में हम उसमें शुगर डाल के ये कर सकते हैं एक्टिविटी. क्या करना है, टेक सम ईस्ट पाउडर फ्रॉम केमिस्ट शॉप, एड अबाउट 2 tablespoon ऑफ ईस्ट पाउडर टू अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. वार्म वाटर लेके उसमें हम 2 tablespoon ईस्ट पाउडर डालेंगे, एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, शुगर भी उसमें डालेंगे टू इट एंड स्टर इट वेल. कीप द ग्लास इन अ वार्म प्लेस इन द रूम फॉर अबाउट 1 hour. 1 घंटे के लिए रखेंगे. पुट अ ड्रॉप of this solution on a glass slide and observe it under the microscope. उसमें से एक ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन स्लाइड पे लेके हम माइक्रोस्कोप पे अगर ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल सी बर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल. ईस्ट सेल पे बर्ड फॉर्म हो गए. नाउ व्हाट कंक्लूजन यू कैन टेक फ्रॉम दिस एक्टिविटी. क्या कंक्लूजन हमें मिलता है कि विद इन आवर वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो गया. मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत छोटे टाइम पीरियड में ये होता है. इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है, इसकी वजह से इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस वेरी स्पीडली. Now we will move towards the next, that is fragmentation. Fragment, the word itself telling us fragments means to break, pieces में break होना है, that is fragmentation. This process involves breaking up of the body of a plant into 2 or more parts of fragments. वो plant खुद को 2 और 3 parts में क्या करता है, break करता है. वो जो छोटे छोटे पीसेस है दे आर ग्रोइंग, वो इंडिविजुअली एक प्लांट करके ग्रो होंगे. फिर से कुछ दिनों के बाद उनका स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा, फिर से वो 2-3 पार्ट्स में कट जाएंगे. ऐसे उनका क्या हो जाता है, वेरी स्पीडली उनका ग्रोथ होता है. ईच फ्रैगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर्स इनटू अ न्यू प्लांट. ये जो छोटे छोटे जो पीसेस थे वो एक प्लांट बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रैगमेंटेशन. द ग्रीन पैचेस फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड बीचेस आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्पायरोगायरा. तो ये जो स्पायरोगायरा का फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो ग्रोथ होता है दैट इज फाउंड ऑन द स्टैग्नेंट वाटर, जैसे पॉन्ड्स में हमें देखने को मिलता है. स्पायरोगायरा वॉज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटेशन. बडिंग का एग्जाम्पल क्या था, ईस्ट था. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्पोर फॉर्मेशन. ये सम प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड फर्न्स में ये स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है. फंगी एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, फंगी में देखने को मिलता है. सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन कहाँ किस में, एक मॉसेस ले लो, फर्न ले लो, ये स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है इसमें. दे रिप्रोड्यूसेस बाय द स्पोर फॉर्मेशन. They give rise to spores by cell division, which are very small bodies having thick walls. ये जो spores है, spores का characteristics क्या है,
वो स्पोर्स आर सिक्यूर्ड इन अ थिक वॉल में होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्कैसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, तो भी द स्पोर्स कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर पाएंगे। व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, वो टाइम पे वो ग्रो करेंगे। So become favorable, the spores give rise to new organisms. This is a simple concept. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। 3 जो मैंने बोला है, बडिंग का मैंने बोला है, बडिंग का बोला हमने, बडिंग का एग्जाम्पल लिया, फ्रेगमेंटेशन का लिया एंड द स्पोर फॉर्मेशन का लिया, ठीक है। सो बडिंग का एग्जाम्पल था ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन का था स्पाइरोगायरा एंड दिस फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल था मॉस है, फर्न है, ऑर्गेनिजम्स में फंगी है। टू ऑब्जर्व स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड, इसके लिए नो नीड ऑफ, इसमें माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रेड का एक पीस ले लो, वाटर स्प्रिंकल करो, उसको डार्क रूम में 2-3 डेज रखो, आपको ग्रीन कलर का उसके ऊपर जो आ जाएगा दैट इज स्पोर फॉर्मेशन हो गया है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ जो है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज मैनुअल एंड नेचुरल। ओके, vegetative propagation is mode of reproduction in which the production of new plants takes place from the vegetative parts. Vegetative parts में क्या आ सकता है? Roots है, stem है, leaves है, even birds भी है ना, इसमें भी birds है of a plant. Natural methods of vegetative propagation. So natural method of vegetative propagation में first is the by root. By root से अपने आप होता है, हाँ, naturally हो जाएगा। तो plants like carrot, sweet potato, then asparagus and dahlia can grow into new plants from their root cuttings, have buds which when placed in moist soil give rise to a new plant. सो ये जो एग्जाम्पल हमारा है कैरेट का है, स्वीट पोटैटो का है, एस्परगस है, तो ये क्या होंगे, हम उनका रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। यू कैन डू इट एट योर होम, आप घर पे कर सकते हो। कैरेट ले लो एंड उसको आपको सॉइल में डालना है, फिर उसको आपको वाटरिंग करना है, फर्टिलाइजर्स डालना है, तो यू विल हैव द न्यू प्लांट। Plants like sugar cane, money plant, banana, strawberry, potato, mint, etc. reproduce stem from their stem cutting. हमने अभी क्या देखा, रूट का हमने देखा, फिर स्टेम कटिंग के लिए क्या, रूट का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था उसका कैरेट है, कैरेट में हमें वो दे, हम वी कैन रिप्रोड्यूस, हमने उसका डाल दिया। स्वीट पोटैटो है, एस्परजस है, तो वो हम अगर उनका रूट्स डाल देंगे तो उसका प्लांट आ जाएगा। हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स अगर करना है, हम अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाय स्टेम्स। सो शुगर केन का एग्जांपल ले लो, मनी प्लांट का एग्जांपल ले लो। मनी प्लांट का तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ द एक्सपीरियंस। वो मम्मी क्या करती है, वो छोटा सा उसका पीस लेके आती है कहीं से भी, वो अगर डाल देगी तो वो न्यू प्लांट में इट विल कन्वर्ट। स्ट्रॉबेरी है, बनाना का ट्री है, इन दिस। पोटैटो ऑन अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो क्या है, स्टेम है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, हैज स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आइज। पोटैटो पे स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिसे हम आइज बोलते हैं, वो हम डालेंगे ऑन इट्स सरफेस, दिस आइज ऑन इट्स सरफेस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल। ये जो बर्ड्स होते हैं जिसे हम आई बोलते हैं, पोटैटो पे होते हैं, वो मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसका जर्मिनेशन होता है एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सो दिस इज टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो। घर पे आप पोटैटो ले लो, टेक अ पोटैटो एंड कट अ पीस दैट हैज़ एन आई ऑन इट। यू कैन सी, मैंने दिया है स्क्रीन पे, उसको कट करना है। प्लांट पीसेस इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, एक पॉट में जिसमें सॉइल है उसमें डाल दो, वाटर इट रेगुलरली एंड प्लेस द पॉट इन द सन। यू विल फाइंड अ न्यू प्लांट डेवलपिंग फ्रॉम द आई जिसपे बड़ जो हम बोलते हैं, जिसे आई बोला जाता है, तो वहाँ से आपको न्यू प्लांट मिलेगा। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम। कैरेट में जो है वो रूट से होता है, पोटैटो में जो है वो स्टेम से होता है। नाउ जिंजर एंड अंडरग्राउंड स्टेम called rhizome also reproduces the same way. To study vegetative propagation in onion,
Fill a glass of jar with water and place onion in the rim such that its roots touch the surface of water. You will shoot emerging from it after a few days. अनियन का भी यू कैन डू इट एट होम, हम घर पे कर सकते हैं. अनियन है, पोटैटो है, कैरेट है. सो यू विल हैव द एक्सपीरियंस. आपको ये सब एक्टिविटीज़ करनी है, उसका रिकॉर्ड करना है एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. सो आई विल अपलोड, मैं फेसबुक पे अपलोड करूँगी. आई विल कीप माई स्टेटस ऑल्सो. माई स्टूडेंट्स हैव डन दिस. ओके. नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स. लीव्स से होता है क्या? लीव्स से बढ़ते हैं कोई प्लांट आते हैं? लेट अस सी. The leaves of plants like begonia and bryophyllum produces buds on their margins. leaves के margins पे उनके buds form होते हैं. On touching moist soil, the buds grow into new plant. Yes, कुछ plants के leaves से भी उनके plant बन जाते हैं. So vegetative propagation bryophyllum में है and begonia है जिसमें हमें देखने को मिलता है. आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ हमने क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मेथड देखा, स्टेम देखा, रूट्स देखा, लीव्स देखा, वो हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? ये नेचुरल था. आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड. हम खुद भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई थिंक आई हैव एनहांस योर नॉलेज. बाय बाय. टेक